Dr. Amir Shafi, all of us bearers of Amlicon, for inviting me to such an academic session. So the topic today which has been given to me is imaging in epigastric and right hypochondrial pain. It's a fairly common kind of thing and should be included in your day-to-day practice. So I have tried to make it more simplified so that you people should be more familiar with it. There are common causes. Many of you know better than this list, and I need not to go through them one by one. These are some common causes and some uncommon causes. And the list is endless, honestly. Because so much of anatomy and pathology, it goes all around epigastric and right hypochondrial region. What are the red flags? What makes you prompt when the patient walks into your clinic? What are the things that you should be alerted and you should look for? What is the severe pain? Whether it is an epigastric, right hypochondrium, severe pain is something which is serious. Vomiting, persistent vomiting, distended abdomen, unintentional weight loss, and blood in stool. So these are the features that you should be very, very careful when you come across these symptoms. And you should not, be ignorant to them. What is a pain threshold? Remember this chart, this is very interesting and very important to you. If you are suspecting inflammation, this is a pain threshold over time curve. The patient will allow you some time. Yes, this is the severity severity level and against the time. And if there is an inflammation, patient will allow you, will give you some time to, to have this kind of pathway. Perforation, bowel perforation will not allow you. It has a very steep curve, and the patient would be in a very, very, miserable and painful condition. So you have to be very prompt with this thing. So you have to look for these things. And if there is an obstruction, so you see this fluctuating kind of pain. Inflammation, you can sit on it. Rupture, bowel rupture, you should be very prompt. And for bowel obstruction, you can wait and see what actually goes on. What imaging should be available to you? Everything is available to you, but should be relevant. You should not unnecessarily start, prescribing. आप जाएं जी ये करा लें वो करा लें. No. You should know exactly, precisely आपको imaging किस तरह की करानी चाहिए. You should not waste resources and it should be prompt और आपको एक अच्छा efficient reply मिलना चाहिए. So you should be, stick to plain films, ultrasound and CT scan primarily. When we are talking in terms of pain in epigastrium and right hypochondrium. So your movement should be all around these investigations. They are simple to do, they are not difficult but relevant. Focusing on epigastric pain, remember these four titles. It can be gastric, originating from gastric. Pancreas can be another source, and epigastric pain, vascular, well I'll talk to you later, and cardiac. Cardiacs are really bad symptoms, and you should not be forgetting when you're dealing with such patients. So stomach, pancreas, vascular and cardiac, remember. And things become, the list is very lengthy in epigastrium, but these are the commonest things that you should look for. These are the images of barium swallow examination. This is esophagus. And can you see this has lost its mucosal lining, and you can see this reactive kind of folds there.
and again. And the worst are these images. This is all esophagitis. So the causes can be many. It can be, kind of viral, bacterial, fungal, or reflux esophagitis. So this can, be problematic to the patient. Stomach. ये आपको बहुत ज़्यादा कॉमन चीज़ें आप देखते हैं इसमें. गैस्ट्राइटिस. सीटी इमेजेस हैं सारे. लिवर है ग्रे कलर का, ग्रे शेड. ये स्टमक है. लुक एट दिस स्टमक. दिस इज स्टमक है जो वाइट है. दिस इज द कॉन्ट्रास्ट एंड दिस इज द वॉल ऑफ द स्टमक. आप देखिए कितना ज़्यादा एडिमेटस स्टमक है. ये एग्जाम्पल है पेनक्रेटाइटिस की वजह से, गैस्ट्राइटिस. कोरोनल इमेज आप देखें स्टमक की कैसी रबरी सी और थिक एंड वॉल है. ये पेशेंट्स आपको बहुत ज़्यादा मिलते हैं अपने क्लिनिक्स में. Again, stomach. So these are varied presentations of gastritis, APD, peptic ulcers, kind of. तो ये आपको इस तरह की चीजें आपको नजर आनी चाहिए. Looking at the pancreas, another notorious thing, anatomical structure is the pancreas, जो कि epigastric pain कर सकता है. ये एक नॉर्मल अल्ट्रासाउंड है ये और ये सीटी स्कैन है. नॉर्मल पैनक्रियास इस तरह का लग रहा है. अगर आप इसको देखें जो पी लिखा हुआ है पैनक्रियास, दिस इज पैनक्रियास. कंपेयर करें विद दिस पैनक्रियास. ये देखिए कितना एडिमेटस है, स्वॉलन है, डिफ्यूजली स्वॉलन. सो दिस इज इवॉल्विंग पैनक्रेटाइटिस. ये पेशेंट भी आपके पास आएंगे और इस तरह की आपको पिक्चर मिलेगी. फर्स्ट केसेस में डिजीज प्रोग्रेस करती है और हम उसको पेनक्रेटाइटिस को एपीडी ट्रीट करते रहते हैं और एक ओवरलैपिंग फीचर होता है, थिंग्स रियली बिकम बैड. और ये सीटी स्कैन है. ये पेनक्रियास पेनक्रेटिक टिश्यू है. आप ये स्टेरिक्स जहाँ पे लगे हुए हैं, कैन यू सी दिस फ्लूइड लॉकुलेशंस ऑल अराउंड द पेनक्रियास. यहाँ पे पेशेंट दे बिकम वेरी वेरी सिक ऑनेस्टली एज कंपेयर टू दीज पेशेंट्स जो कि इतने सिक नहीं होते. और पेनक्रियाटिक कॉम्प्लिकेशंस आप ये देखें, दिस इज पेनक्रियाटिक हेड एंड बॉडी. टेल की तरफ अगर आप देखें तो कितना ज़्यादा नेक्रोसिस है, फ्लूइड है, एयर भी है. अगेन पैरापेनक्रियाटिक फ्लूइड है और पेनक्रियाटिक पैरेन्क्यापल नेक्रोसिस हो गया. पेशेंट वुड बी वेरी वेरी सिक एट दिस टाइम. एज थिंग्स गो फर्दर आपको एक सूडोसिस्ट ऑफ पेनक्रियास, ये जो फ्लूइड लॉकुलेशंस हैं, ये दे कोएलेज एंड एक कैविटी में कन्वर्ट हो जाती हैं और इसको आप सूडोसिस्ट कहते हैं. दिस इज व्हेन यू क्रॉस दीज स्टेजेस एंड यू पास इनटू दिस थिंग. ये जब एज फ्यू वीक्स गोज ऑन तो फिर आपको ये सूडोसिस्ट भी नजर आती है. इसको आपको ट्रेन करना पड़ता है. व्हेन डिजीज प्रोग्रेसेस, ये एक एक्सरे है. आप ये देखें एक ऑब्लीक किस्म की कैल्सिफिकेशन आपको नजर आ रही है ऑल अक्रॉस द एब्डोमेन. ये पेनक्रियाटिक कैल्सिफिकेशन. शायद आपको इस तरह के एक्सरेज देखने में मिलते हैं. ये पेनक्रियाटिक कैल्सिफिकेशन मिल रही है. दिस इंडिकेट्स कि इसको क्रॉनिक पेनक्रेटाइटिस रहा है इस पेशेंट. जब हमने सीडी किया तो ये कैल्सिफिकेशन आपको पेनक्रियास में इस तरह की नजर आती है और सारा का सारा पेनक्रियास इज ऑल डिफ्यूजली एट्रोफिक. ये पिक्चर है क्रॉनिक पेनक्रेटाइटिस. तीसरी चीज जो आपके लिए प्रॉब्लमेटिक हो सकती है वो बावल डिस्टेंशन. आपको एक्सपीरियंस होता होगा अपने क्लिनिक्स में, पेशेंट आया कि जी मुझे बहुत ज्यादा दर्द है, पेट में हर जगह दर्द हो रहा है. बावल डिस्टेंशन. बावल डिस्टेंशन के बेतहाशा कॉजेज हैं जो कि हमें पता होने चाहिए और जो कि आपको हेल्पफुल होंगे. अगर आप देखें ये सारी स्मॉल बावल डायलेटेड है. आप ये एक्सरेज देखते होंगे सुपाइन और लेटरल व्यूज में. ये सारे के सारे डिस्टेंडेड हैं और थोड़ा सा फ्लूइड भी आया है. अगर आप इसको इरेक्ट एक्सरे को देखें, कैन यू सी ये लिवर है, कैन यू सी द एयर अंडर द डायफ्राम. सी ये डायफ्रामेटिक ट्रस और लिवर के दरमियान में एयर नहीं होनी चाहिए. इफ इट इज देयर
तो आपको परफोरेशन सस्पेक्ट करना चाहिए। हो सकता है कोई ड्यूडल परफोरेशन हुई, कोई हाइड्रोजेनिक परफोरेशन हो गई या किसी और वजह से हो। तो आपको ये देखना आना चाहिए डायरेक्ट व्यू में कि क्या ये एयर अंडर डायफ्राम तो नहीं है कहीं। इट कैन बी ऑन लेफ्ट साइड, इट कैन बी ऑन राइट साइड, इट कैन बी ऑन लेफ्ट साइड एज वेल। स्टमक देखें, स्टमक फ्रंटल शैडो आपको नजर आ रहा है, बट दिस इज एयर अंडर द डायफ्राम। तीसरी चीज है जो कि बबल इस्कीमिया और नेक्रोसिस और परफोरेशन कर सकती है, वो है इस्कीमिक बबल सिंड्रोम। ये कलर डॉपलर है, ये SMA है, सीवियर मेसेंटेरिक आर्टरी, जो कि बिल्कुल थ्रोम्बोज हो गई और आपको उसके अंदर कलर और आगे जाता हुआ नजर नहीं आता। ये डॉपलर अल्ट्रासाउंड है, बिल्कुल ओरिजिनली थोड़े से कलर आ रहे हैं। ये इसका ल्यूमन है, इसको भी फिल होना चाहिए था विद दीज कलर्स, ये नहीं हुई। सो देयर इज अ थ्रोम्बस सिटिंग इनसाइड, और इस थ्रोम्बस में अगर आप सीटी देखें तो ये जो एरोस पॉइंट कर रहे हैं, दिस इज सुपीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी, ये जिसको कि बिल्कुल ब्राइट होना चाहिए था, जो कि नहीं हुई, एंड दिस इज थ्रोम्बस विद द आर्टरी। ये भी इस्कीमिक बबल करेगी, उसी तरह पर एब्डोमिनल डिस्टेंशन करेगी, पेशेंट वुड बी लेथार्जिक। अगेन उसी का ये एक्सिक्वली है। और ये आप ये देखें कि पोर्टल वेन में गैस आई हुई है, ये देखें, दिस इज ऑल पोर्टल वेन, जो ब्लैक ब्लैक नजर आ रही है, दिस इज गैस इन द पोर्टल वेन, जो कि इंडिकेट करती है कि ये नेक्रोटाइजिंग enterocolitis हुआ है, which is patient would be very very serious in this scenario. फिर और आगे चलते हैं तो वेस्कुलर कॉजेज हमने कही। वेस्कुलर कॉजेज में एओर्टिक एनेरिज्म नॉट वेरी, हमारे यहाँ पे इतना ज़्यादा एओर्टिक एनेरिज्म इज नॉट वेरी कॉमन एज कम्पेयर टू वेस्ट। वेस्ट में बहुत ज़्यादा कॉमन है, उनकी एज ज़्यादा होती है और उनके बहुत सारे कॉजेज हैं एओर्टिक एनेरिज्म। लेकिन फॉर यू पीपल एओर्टिक एनेरिज्म, अगर पेशेंट कहता है जी मुझे एपिगैस्ट्रिक पेन है, आप उस पर पेट के ऊपर हाथ रखें, यू विल फील दैट ड्रू ही आपको फील होगा, और वो आपको जो है ना, वो दैट विल इंडिकेट एंड विल प्रॉम्प्ट यू कि जी देयर इज समथिंग एल्स गोइंग ऑन। तो आप उसका अल्ट्रासाउंड डॉपलर एडवाइस कर सकते हैं, एंड लेटर ऑन इफ इट इज देयर फिर हमें स्टेजिंग सीटी करना पड़ेगा उसके लिए। तो ये सारे एग्जांपल्स कलर डॉपलर के हैं। ये एओर्टा, ये इसकी वॉल है, कैन यू सी दिस फ्यूजिफॉर्म काइंड ऑफ डायलेटेशन, ये भी एओर्टा है। अगेन एओर्टिक ल्यूमन आपको ये कलर डॉपलर में ऐसे नजर आता है। ये सारा का सारा एनेरिज्म है, इसकी वॉल में थ्रोम्बस है, ये इसका पेटेंट ल्यूमन है, ये ब्लैक वाला। जब हमने सीटी स्कैन किए एनेरिज्म्स के, तो आप ये देखें कि दिस इज कॉन्ट्रास्ट फिल्म एओर्टा, और ये सारा का सारा जो है ना एक म्यूरल थ्रोम्बस बना हुआ है इसकी वॉल में, क्योंकि ब्लड लीक हो रहा है वॉल के अंदर। ये सारे के सारे ऐसे वर्ली सी ओपिनियंस आपको नजर आएगी। अगेन कैल्सिफाइड वॉल्स हैं एथेरोस्क्लेरोटिक डिजीज की वजह से। पीपल हु टेंड टू स्मोक, उनको ये ज़्यादा कॉमन होता है। ये भी एथेरोस्क्लेरोटिक एनेरिज्म है। अगेन आप देखें इसका ल्यूमन सिर्फ इतना सा रह गया हुआ है, ये सारा का सारा वॉल में थ्रोम्बस, इतना सा ल्यूमन रह गया एओर्टा, ये देखिए। तो एओर्टिक एनेरिज्म इज अनदर कॉज ऑफ एपिगैस्ट्रिक पेन। ये दोनों इमेजेस, दिस इज ग्रे स्केल अल्ट्रासाउंड, डॉपलर अल्ट्रासाउंड, और ये सीटी स्कैन है। एओर्टा, ये वेसल्स हैं, कैन यू सी दिस ग्रे थिंग ऑल अराउंड इट, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, कैन यू सी दिस बिगर लॉब्स, ये सारे के सारे लिम्फ नोड्स हैं, और ये पेशेंट था लिम्फोमा के वजह से। तो ये भी आपको एपिगैस्ट्रिक पेन बता सकता है। So there is a very presentation of epigastric pain, honestly. तो आप you really have to dig out your available list कि ये क्या चीज़ हो सकती है। So ये आप डे टू डे में आप लोगों के बहुत काम आना चाहिए ये चीज़, कि आपको पता हो कि जिस पेशेंट को किस तरह से है, where to refer this patient, हमने इसके आगे क्या करना है। हम इस लिम्फोमा को अगर हम एक APD एसिम्प्टोमेटिक डिजीज ट्रीट करते रहें, तो आप कैसे ठीक होगा?
बार बार आपके पास आता रहेगा और आप बड़ी प्रॉब्लमेटिक। तो सेंड दिस पेशेंट टू टर्शरी केयर सेटिंग जहाँ पे ये चीज़ें कैन बी अकाउंटेड फॉर और उसका नोबडी नोज के इतने सारे पेशेंट्स आते हैं उनमें से कौन सा किसको लिम्फोमा था किसको क्या था। पेरिफेरल स्मीयर्स आप कराते हैं उसमें कभी पता चलता है कभी नहीं पता चलता। तो आप बी वेरी केयरफुल व्हेन यू आर डीलिंग विद सच पेशेंट्स। ये अदर कुछ और एग्जांपल्स हैं लिम्फोमा के। ये देखें सारा एओर्टा है, ये जितने बड़े बड़े आपको चीज़ें नजर आ रही हैं दे आर ऑल मैसेज ऑफ लेफ्ट नोड्स। ये देखें ह्यूज मैस, ये देखें सीलियक एक्सेस इस तरह से इसने उठाई हुई है और इसको हम कहते हैं सोन जो जिस तरह से वो होती है उसके ये विंग्स बने हुए हैं और ये सारे के सारे देखें नोड्स बने हुए हैं। ये थोरेसिक एओर्टा है और ये एंटीरियर मीडियास्टल में भी मैस पड़ता है। सो दे आर ऑल एग्जांपल्स ऑफ लिम्फोमा। ये आपको इसलिए दिखा रहे हैं, मे बी दीज आर नॉट रेलेवेंट टू यू, लेकिन आपको पता हो कि ये आपके जहन में डिफरेंशियल्स होने चाहिए। अब हम मूव करते हैं राइट अपर क्वाड्रेंट पेन की तरफ। इसमें 3 बड़ी मोडालिटीज हैं। अगर आपके पास इस तरह पेशेंट आता है, लिवर के कुछ कॉजेज हो सकते हैं, सिंस लिवर इज ऑन राइट साइड, बिलियरी हो सकती है, गॉल ब्लैडर की कोई पैथोलॉजी हो सकती है, कुछ अदर कॉजेज भी हो सकते हैं। तो हम ब्रीफली 1 बाय 1 इसको देखते हैं कि क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं अगर हमारे पास इस तरह का पेशेंट होता है। यही हेपेटिक है, कुछ पल्मोनरी है। पल्मोनरी इसलिए है कि उसका जो रिसेस है, राइट कॉस्टोफ्रेनिक एंगल है, वो बहुत नीचे की तरफ जाता है। अगर कोई थोड़ी छोटी मोटी फ्यूजन है तो वो भी आपको ऐसा लगेगा कि राइट हाइपोकॉन्ड्रिक पेन हो रहा है। तो आपको ये डिफरेंशियल्स को नेगोशिएट करने में आपको बहुत आसानी हो जाएगी। लेकिन जो कॉजेस जो आपको जहन में रखने चाहिए कॉमनली, एक हेपेटिक कॉज हो सकता है, कोई पल्मोनरी कॉज हो सकता है, रीनल कॉज भी हो सकता है, राइट रीनल का भी कोई कॉज हो सकता है जो रेफर पेन करे, बिलियरी ऑब्वियसली होंगे, कार्डियक भी हो सकता है। अब आप कहेंगे कि जी राइट साइड पे कार्डियक कैसे आ गया, लेकिन मायोकार्डियल इंफार्क्शन, पेरिकार्डाइटिस, ये सब के सब एक रेफर पेन कर सकते हैं। दीज कैन ऑल्सो बी मिमिक कि जी राइट हाइपोकॉन्ड्रिक पेन हो रहा है तो हम कार्डियक कॉज तो हो ही नहीं सकता इसका। नो, दैट इज नॉट द केस। ये आपको ज़हन में होनी चाहिए चीज़ें। गॉल ब्लैडर की अल्ट्रासाउंड है, गॉल ब्लैडर की वॉल बिल्कुल स्मूथ होती है। ये आपने देखे होंगे मोस्ट ऑफ द टाइम कि गॉल ब्लैडर की वॉल बिल्कुल स्मूथ है। इसको अगर आप देखें तो गॉल ब्लैडर की वॉल स्मूथ नहीं है, लेकिन इसलिए कि ये अच्छा डिस्टेंडेड है और ये इतना डिस्टेंडेड नहीं है। सो दिस इज नॉट एन एब्नॉर्मैलिटी कि वॉल थिकनिंग है और आप इसको स्टार्ट ट्रीटिंग एज पॉलीसिस्टाइटिस। ये पार्शली डिस्टेंडेड है, थोड़ी सी वॉल, ये इसका मिकोजा आपको नजर आ रहा है, तो ये डिजीज नहीं है। मोस्ट ऑफ टाइम आप अगर अल्ट्रासाउंड खुद करते भी होंगे तो आप बी वेरी केयरफुल ये चीज़। ये फुल ब्लोन गॉल स्टोन्स हैं, लेयरिंग स्लज है। आप देखें स्टोन्स की किस तरह से शेडोज होती हैं, इस तरह से प्रेजेंट करता है। ये एक फुल ब्लोन कोलिसिस्टाइटिस आपको इस तरह की चीज़ नजर आएगी। ये आप अपनी अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट्स में देखते होंगे आमतौर पर, वेरी कॉमन। और कोलिसिस्टाइटिस के देखें एक स्टोन है जो कि ये गॉल ब्लैडर है पूरा, इसकी नेक में इम्पैक्टेड है, सारी की सारी वॉल इसने इन्फ्लेम कर दी। सो दिस इज एक्यूट कोलिसिस्टाइटिस। अनदर ये देखिए स्टोन जो कि पोस्टीरियर शेडोइंग दे रहा है और ये इसकी वॉल है। दिस इज ऑल स्लज, बिलियरी इन्फेक्टेड स्लज, और ये सारी की सारी वॉल इसकी एडिमेटस, एक्यूट कोलिसिस्टाइटिस। स्लज जब इम्पैक्ट कर जाती है तो वो आपको ऐसा लगता है कि स्टोन्स हैं। अगर आप उन स्टोन्स को देखें, टिपिकल स्टोन्स को, तो ये पोस्टीरियर डिस्टल शेडोइंग दे रहा था। जो स्लज है वो पीछे शेडो कोई नहीं देता, वो इस तरह से आपको ऐसे ब्लॉक से बन जाते हैं अंदर गॉल ब्लैडर में, और आपको ये वो नहीं करते, लेकिन ये सॉफ्ट स्टोन्स आप इनको कह सकते हैं। दे आर नॉट एज हार्ड एज कंपेयर टू दोज स्टोन्स। जब ये और ज़्यादा इकट्ठे हो जाएं तो हम इनको ट्यूब इफेक्टिव स्लज कहते हैं। ट्यूब इफेक्टिव मीन्स ट्यूमर लाइक अपीयरेंस। इट इज़ नॉट ए ट्यूमर,
लेकिन वो ट्यूमर की तरह की एक शक्ल बन जाती है। तो आप अगर इस तरह की चीज़ें से परेशान हो फिर ट्यूमर है। ट्यूमर के को निगोशिएट करने का और बड़े फीचर्स हैं। आप पहले डॉक्टर डाल के देख सकते हैं कि इसकी में अंदर वेस्कुलरिटी है या नहीं। सो दिस इज नॉट ट्यूमर। अगेन गॉल स्टोन्स, आप ये देखिए, दिस इज सीबीडी। सीबीडी में एक स्टोन पड़ा हुआ है, इसने पीछे सारी बिलियरी ऑब्स्ट्रक्शन की थी। सो आई हैव टू डू इट क्विकली। आई कैन हेयर द बेल। आप ये देखिए मल्टीपल स्टोन्स हैं, अगेन सीबीडी स्टोन्स। ये ईयूएस एंडोस्कोपिक अल्ट्रासाउंड, शायद आपने अगर सुना है या किस तरह से एंडोस्कोपिक अल्ट्रासाउंड में स्टोन देखे आप कितना जबरदस्त नजर आता है, बिकॉज यू आर सिटिंग राइट ओवर इट। अगेन ये एंडोस्कोपिक अल्ट्रासाउंड की एक पिक्चर है, सीबीडी है, सीबीडी में स्टोन पड़ा हुआ है। अगेन अनदर एग्जांपल, ये स्कोप पड़ा हुआ है, ये सीडी के साइंस हैं, यू कैन सी लॉट ऑफ स्टोन्स इंफेक्टेड। अगेन एमआरसीपी के पिक्चर्स हैं, कुछ देखें सिग्नल वॉइड स्टोन्स इंफेक्टेड हैं, ये सारे स्टोन्स हैं। ईआरसीपी का इमेज है, ये गॉल ब्लैडर masses हैं, but I have been asked to do it quickly, so I'm rushing through that. Hydrated disease in liver, ये भी कॉज कर सकती है पेन। दिस इज सीटी एंड दिस इज एमआरआई। आप अंदर डॉटर सिस्ट भी देख सकते हैं, ये भी कॉमन सी चीज है। हम इसको ड्रेन कर सकते हैं बड़ा इफेक्टिवली। वी कैन प्लेस कैथेटर इनसाइड द एब्सेसेस। ये सारी एब्सेसेस हैं, लिवर की एब्सेसेस जिनमें हमने कैथेटर डाले और वो ड्रेन में सक्सेसफुली पेशेंट गॉट ऑलराइट, सारी ड्रेन हो गई। हीमैंजियोमास आर कॉमन, ये आप देखते होंगे, सीटी भी ऐसे लगते हैं, अल्ट्रासाउंड पे राइट है। सिरोसिस, हेपेटाइटिस के पेशेंट्स आर ह्यूज इन साउथ ईस्ट एशिया। आपको ये नजर आते हैं सिरोसिस, तो ये ट्यूमर डेवलप हुआ है एचसीसी। अल्ट्रासाउंड पिक्चर्स हैं और ये सीटी है। ये सारे इस तरह की अगली लुकिंग चीज़ें आपको नजर आती होंगी ऑफर। ट्यूमर्स हैं वेरियस साइजेस के, ये पोर्टल वेन में मेड करके हैं और आपको इस तरह की बहुत सारी चीज़ें नजर आती हैं। अगेन ट्यूमर सीन ऑन सीटीज, एचसीसीज, मेड्स इस तरह के नजर आते हैं जो कि आपको राइट हाइप कॉन्टेक्ट पेन कर सकते हैं। इंटरसेप्शन है, ये अल्ट्रासाउंड इमेजेस हैं इंटरसेप्शन के। आलियोकोलिक इंटरसेप्शन हुई, वो भी आपको राइट साइड राइट फ्लैंक पेन कर सकती है। ये भी आपके डिफरेंशियल में आ जाएगा। सीडी में आप ये देखें, एक डोनट साइन है, डोनट की तरह का बना हुआ है। रीनल स्टोन्स राइट फ्लैंक पे पेन कर सकते हैं।